الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمنان کے رہنے والے تھے، یعنی سمنان کی سرزمین پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ سمنان کہاں پہ تھا؟ ایران کے ایریا میں ایک جگہ تھا جسے سمنان کہتے تھے، اور سمنان کا یہ نیم، یہ دستور تھا کہ وہاں جو بھی بادشاہ رہتے تھے وہ آل رسول ہوتے تھے، سید گھرانے کے ہوتے تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے نور بخش بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ، آپ کی والدہ محترمہ جو تھی، اللہ کی بڑی پرہیزگار عبادت گزار تھی، اس لیے کہ آپ کے والد جو تھے سمنان کے سلطان تھے، بادشاہ تھے، اور آپ کے والد یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو ہے کوئی اولاد نہیں تھا، 3 بیٹی تھی۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہے، رب کائنات میرے یہاں کوئی فرزند نہیں ہے جو میری سلطنت کو چلائے گا، میرے یہاں کوئی وارث نہیں ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ یہ سوچ کے کہ سیدہ خدیجہ جو چیز تمہاری قسمت میں نہیں اس کی تم امید کیوں کرتی؟ تو حضرت سیدہ خدیجہ جو آپ کے والدہ محترمہ تھی، ایک روز آپ خواب میں دیکھتی ہے کہ انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ خواب میں بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے یہاں ایک فرزند آنے والا ہے، ایک بیٹا تمہارے یہاں آنے والا ہے۔ وہ خوشخبری، وہ بشارت انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ دے رہے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ یعنی مخدوم سمنانی کی والدہ محترمہ صبح خواب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہی ہے۔ اسی محل میں، اسی گھر کی حویلی محل میں ایک درویش، ایک فقیر گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد اب حضرت ابراہیم حیران و پریشان کہ ہمارے گھر کا دروازہ، محل کا دروازہ بند ہے، دربان ہے، چوکیدار ہے، باہر میں کھڑا ہے،
یہ اندر کیسے آ گیا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں اسے کوئی دروازوں کی ضرورت نہیں پڑتا ہے، جدھر سے چاہے ادھر سے وہ اندر لا۔ اس بزرگ کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق سے اس بزرگ کا بھی نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ معجوب بزرگ تھے۔ وہ آئے کہے کہ اے سمنان کے سلطان، اے سمنان کے بادشاہ، ہم آپ سے ایک سودا کرنے آئے ہیں، آپ ہم سے ایک سودا کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے والد فرماتے ہیں کہ سودا کون سا سودا بتائیے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تم ہمیں 1000 اشرفیہ دے دو۔ اس وقت جو اشرفیہ جو ہوتے تھے وہ سونا کے ہوتے تھے، کہ تم ہمیں 1000 کے اشرفیہ دے دو، 1000 اشرفی دے دو اور 1 اشرف لے لو، یعنی 1000 کو اور 1 اشرف لے لو۔ تو اللہ نے اسے بشارت دی کہ تمہارے یہاں 2 فرزند آئے گا، ایک فرزند کا نام محمد اشرف رکھنا اور ایک کا نام محمد عارف رکھنا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری یا 712 ہجری کو اب سمنان کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں ہیں، 6 مہینہ ابھی اپنی والدہ محترمہ کے شکم ہے، لیکن وہی بزرگ حضرت ابراہیم جو معجوب بزرگ تھے پورے سمنان میں ایک اعلان کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، ہوشیار خبردار۔ اب لوگ حیران و پریشان ہیں کہ یہ آواز، یہ نعرہ تو صرف بادشاہی کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری یا 712 ہجری کو آپ سمنان کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو آپ کا نام جو بشارت دیا گیا تھا محمد اشرف آپ کا نام رکھا گیا، محمد اشرف آپ کا نام رکھا گیا، اور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 7 سال کی عمر میں بہترین حافظ قرآن ہو گئے اور بہترین قاری قرآن، یعنی 7 لہجوں کے آپ قاری ہو گئے، 7 لہجوں کے آپ حافظ قرآن ہو گئے، جسے کہا جاتا ہے کہ قاری سبا، یعنی 7 قیرت کے جاننے والے کو قاری سبا کہتے ہیں، کہ 7 قیرت میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اور 14-15 سال کی عمر میں آپ بہترین عالم دین، بہترین محدث، بہترین مفکر، بہترین فقہ کی جانکاری، یعنی آپ 14 سال کی عمر میں آپ بہترین عالم دین اور محدث، مفکر، محدث، فقیہ، آپ سب چیز ہو گئے۔ بتاتے ہیں وہاں کے علماء فرماتے ہیں کہ جب محمد اشرف مدرسے سے چلتے تھے تو مولانا اشرف کم لگتے تھے، فقیر اشرف زیادہ معلوم ہوتے تھے۔ وہاں کے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر میں جب علم ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن مخدوم اشرف اتنا علم ہونے کے بعد بھی آپ فقیری کی طرف زیادہ مائل تھے، یعنی اللہ کے جہد و عبادت میں زیادہ مشغول و معروف رہتے تھے۔ لوگ آپ کو کہتے تھے کہ مولانا، یعنی وہاں کے سمنان کے علماء فرماتے تھے کہ مولانا اشرف کم معلوم ہوتے تھے، فقیر اشرف زیادہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ کو 15 سال کی عمر میں، سنتے چلیے گا، 15 سال کی عمر میں آپ کو سلطنت یعنی تخت پر بٹھایا گیا،
सल्तनत की कुर्सी पर बैठाया गया। आप 15 साल की उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, आप 15 साल की उम्र में आपको तख्त पर बैठाया गया, यानी बादशाहतियत के तख्त पर बैठाया गया। आप सल्तनत की कुर्सी पर आपको बैठाया गया। आपकी अदल इंसाफ पूरे सिमनान, पूरे अगल बगल इलाके में आपके अदल इंसाफ, आपकी हक्कानियत का चर्चा हो रहे थे। लोग आपके जिक्र करते थे। हमने बादशाह तो बहुत देखे हैं, लेकिन सिमनान के जो बादशाह है उसकी अदल इंसाफ का क्या कहना है। सिमनान के जो बादशाह है, एक तो आले रसूलुल्लाह है और नाइबे रसूलुल्लाह बन के तख्त पर बैठे हैं। यानी लोग कहते थे कि रसूल की औलाद भी है और नाइबे रसूलुल्लाह भी है। मखदूम सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत एक बात और याद रखिएगा, दो वली ऐसे गुजरे हैं जो उसका मिसाल नहीं है। किस बुनियाद पे? तारीख सल्तनत, यानी दो वली के बारे में आता है कि तारीख सल्तनत। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तख्त को लात मार दी, यानी बादशाहतियत को छोड़ के फकीर इख्तियार किए। और दूसरा आप हैं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपने 10 साल तक हुकूमत की। 10 साल के बाद आप एक बादशाह होकर भी अपनी रियाया की भी देखभाल करते थे और रात भर मुसल्ला पे रात को गुजारते थे अल्लाह की इबादत तो रियाजत में, जिक्र अज़कार में। वो मखदूम सिमनानी की जिंदगी है। मखदूम अशरफ जहां सिमनानी की रात देखिए कैसी रातें गुजर रही है इबादत और रियाजत में। आज हम लोगों के पास या किसी के पास चंद पैसा हो जाए तो गोया वो अपने आप को इतना ये समझने लगते हैं कि जो हम हैं वो कोई नहीं। अगर हम लोगों के पास चंद पैसा हो जाए तो हम लोगों के अंदर में गुरूर, घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। हम लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन सैयद मखदूम अशरफ की जिंदगी को उठाकर देखिए कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, तख्त पर है, लेकिन अल्लाह को आप नहीं भूल रहे, अल्लाह की इबादत और रियाजत में रातें गुजार रहे हैं। तो वही सैयद मखदूम अशरफ जहां सिमनानी एक रोज अपनी वालिदाए मोहतरमा से कहते कि अम्मी जान, मैंने 10 साल तख्त पर बैठा हुकूमत किया, मैंने अदल इंसाफ से पूरे सिमनान को भर दिया है, इसलिए अब हम इसे छोड़ना चाहते हैं। आपको तख्त से हटाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं किया गया है, कोई सौदा नहीं हुआ है, क्या इतना रुपया दो हम तक छोड़ देंगे, बल्कि मखदूम सिमनानी खुशी से तख्त को छोड़ रहे हैं और तख्त पर अपने छोटे भाई मोहम्मद आरफ को बैठाने के बाद फिर माँ अपनी वालिदा मोहतरमा से कहते कि अम्मी जान, अब मेरा दिल दूसरी तरफ लग रहा है, अल्लाह के राह में मैं जाना चाहता हूँ। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, जब तुम निकल रहे हो बाहर तो कुछ फौज को भी अपने साथ ले लो, सेना को भी अपने साथ ले लो, ताकि लोगों को ये पता चले कि जब बादशाह अपने तख्त घर से महल से निकल रहा तो किसी मुहिम में जा रहे हैं। मखदूम सिमनानी अपनी वालिदाए मोहतरमा के हुक्म के मुताबिक आपने सेना को भी अपने साथ लिए। कुछ रास्ता तय करने के बाद जब समारे कंद की तरफ चलने लगे तो सेना को वापस कर दिए। मुख्तसर ये है कि आप वहां से चलने के बाद आप किधर की रुख किए हैं? आप हिंदुस्तान की तरफ रुख किए हैं। हिंदुस्तान की तरफ जब रुख किए हैं तो लाहौर पहुंचे। लाहौर हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे जहानिया जहांगीर गश्त भी कहा जाता है, उसके पास पहुंचे। वहां खानका में आप रुके के रहने के बाद फिर जलालुद्दीन बुखारी कहते हैं कि बेटा अशरफ, तुम्हारा इंतजार कहीं और हो रहा है, तुम्हारा इंतजार कहीं और हो रहा है, तुम और आगे जाओ। गोया आपका इंतजार कहाँ हो रहा है? बंगाल की सरजमीन पर, पंडवा शहर में, यानी अलाउल हक पंडवी
अपने मुरीद की इंतजार कर रहे हैं। आप चले हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, पाँव में चप्पल नहीं है, खुले पाँव चल रहे हैं, रास्ता में चल रहे हैं। उसी असना में बिहार के रास्ते से आ रहे हैं। बिहार के रास्ते में जब आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि एक जनाजा रखा हुआ है, और एक जनाजा रखा हुआ है, वहां सारे लोग मौजूद है, उलमा भी मौजूद है, मुफ्तियान कराम भी है, फ़क़ा भी मौजूद है, सारे लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन जनाजे की नमाज कोई नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी का इंतजार देख रहे हैं, किसी का राह देख रहे हैं, कोई आने वाला है। इसलिए कि वो कौन थे जिसे शरफुद्दीन यहिया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, जिसे हम लोग मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। वो मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह विसाल करने से पहले अपने मुरीदों को ये तलकीन करते हैं, ये हुक्म देते हैं कि मेरे विसाल के बाद हमें गुस्ल दे के कफन पहना के हमारे जनाजे को रख दिया जाए। हमारे जनाजे का नमाज वो पढ़ाएगा जो आले रसूलुल्लाह होंगे, जिसका नाम मोहम्मद अशरफ होगा, जिसके चेहरे पे नूर चमकता होगा, और जो सल्तनत को छोड़ के आया होगा, वही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए। तो आपने जब देखे एक जनाजे को तो कहे किसका जनाजा है? सारे लोग कहे, मुफ्तियान कराम भी थे, उलमाए कराम भी थे, मुरीद लोग भी थे कि ये हमारे पीर का जनाजा है, शरफुद्दीन यहिया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम बिहारी का जनाजा है। हमारे पीर ने ये वसीयत किया है कि ऐसे मने सैयदुल नस्ब के होंगे, आले रसूलुल्लाह होंगे, नबी की औलाद होंगे, उसका नाम मोहम्मद अशरफ होगा, वो तारीख़ सल्तनत होंगे, वो तख्त को छोड़ के आए होंगे, वही हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जिस अशरफ की वो बात किए हैं वो मोहम्मद अशरफ मैं ही सिमनान का बादशाह हूं, सिमनान की तख्त को छोड़कर आया हूं। फिर आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई, पढ़ाने के बाद फिर आप वहां से चले हैं, कहां पहुंच रहे हैं? मालदा पहुंच रहे हैं। वाह! आपके पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं, उठने के बाद वजू करते, अपने मुरीदों से कहते हैं चलो। चलने के बाद शहर से बाहर आते हैं मखदूम समनानी के इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए। फिर मखदूम समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगाते हैं। फिर एक पालकी मंगाई जाती है, किस लिए कि यह आले रसूलुल्लाह है, नबी की औलाद है, नबी का बेटा है, उसके लिए पालकी मंगाया गया है। कहा कि ए मोहम्मद अशरफ, ए फर्जिंदे अशरफ, आप उस पालकी पर बैठिए, आप सफर कीजिए। तो सैयद अशरफ है, आप अदबन ताजिमन उस पालकी पर नहीं बैठते हैं। फिर आप अपने पीरो मुर्शिद के खानका में पहुंचे। पीरो मुर्शिद के खानका में पहुंचने के बाद आप अपने पीरो मुर्शिद से मुरीद हुए, आपको खरका खिलाफत दिया गया है, हर चीज आपको दिया गया है, इजाजतनामा दिया गया है, और देने के बाद कहा जाता है कि मखदूम अशरफ जो है 12 साल तक पंडवा में यानी अपने पीरो मुर्शिद के खानका में रहे। अभी तक आपका नाम सिर्फ सैयद मोहम्मद अशरफ ही है, यानी अभी तक आपका नाम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर आपका नाम नहीं है अभी। तो ये अलकाब, ये लकब आपको जहांगीर जो मिला है आपके पीर से मिला है। आपके पीर ने कहा कि बेटा अशरफ, अब यहां से तुम चले जाओ। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि हुजूर, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, आप ही के पास रहना चाहता हूँ। तो आपके पीर मुर्शिद ने कहा कि बेटा अशरफ, इसलिए अब तुम्हें दूसरे जगह जाना ही होगा। कहा तुम जौनपुर चले जाओ। कहा कि जौनपुर में एक तो शेर है,
बोला है तो क्या, लेकिन अगर तुम किसी पे हाथ फेर दो तो वो शेर उसके लिए काफी है। मुख्तसर ये है कि आप जौनपुर पहुंचे और जौनपुर में पहले से एक बुजुर्ग थे जिसके नाम मौलाना, पहले से एक बुजुर्ग थे जिसके नाम थे इब्राहिम चिरागे हिंद। वो इब्राहिम चिरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो थे, बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े वली थे। लेकिन एक मौलाना उसी जौनपुर में मौलाना कबीरुद्दीन खाम में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देखते हैं और देखने के बाद सुबह बेदार होते, कहते कि बताओ कि इस इलाके में, इस शहर में, इसलिए कि जौनपुर एक स्टेट को कहा जाता था, आज तो एक जो है जौनपुर एक कस्बा, एक गांव रह गया है यूपी के अंदर में। वो आए पूछे कि यहाँ बताओ कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? तो लोग बताए इब्राहिम चिरागे हिंद के बारे में। वो उसके पास गए, मुरीदों को तलकीन कर रहे थे, मुरीदों को समझा रहे थे, कहा नहीं वो बुजुर्ग नहीं है जो हमें खाम में दिखाया गया है। फिर आप वहां से उठे चले निकल पड़े हैं तो इब्राहिम चिरागे हिंद कहे कि ये मौलवी किस लिए आया था, ये मौलवी किस लिए आया था? चिरागे हिंद से उनके मुरीदों ने कहा कि हुजूर ये मुरीद होने के लिए आया था। तो फिर कहा नहीं, वो कह रहा है कि हमें जो खाम में दिखाया गया है वो नहीं है। कहा देखो उसका पीछा करो, कहाँ जा रहे। तो गए, देख रहे हैं कि एक नूरानी चेहरे वाले, गुलाबी चेहरे वाले, अगर वो मुस्कुराते हैं तो गाल में यूं महसूस होता है, लगता है कि अनार का दाना है। सैयद अशरफ जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो थे, पान के बड़े शौकीन थे। कहा कि हुजूर वो एक जो बुजुर्ग अभी आए हुए हैं उनसे जाके वो मुरीद हो गए हैं, उनसे बैठ हुए हैं। इतना कहना है कि इब्राहिम चिरागे हिंद को जला लाया का मौलाना कबीरुद्दीन जवानी में ही में मर जाएगा, यानी जवानी में इंतकाल कर जाएगा। लोग आके कहे कि मौलाना कबीरुद्दीन तुम्हें चिरागे हिंद ने तुम्हारे हक में बद्दुआ किया है। अब इतना कहना है, अब हजरत मखदूम सिमनानी का वो मुरीद मौलाना कबीरुद्दीन है, आज कहते हुजूर ऐसे मेरे बारे में कहा है। तो हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम बोलो। कि हुजूर जो वो मेरे लिए कहा है आप उसी के लिए हो जाए। का चलो ठीक है। फिर वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं कि तुम्हारा नाम कबीर है, कबीर बूढ़ा को कहते हैं, तुम जवानी में कभी नहीं मर सकते हो, तुम बूढ़ा हो के मरोगे। क्या था, मौलाना कबीरुद्दीन के इंतकाल से पहले 5 साल पहले मोहम्मद इब्राहिम चिरागे हिंद 5 साल पहले विसाल कर गए। और मौलाना कबीरुद्दीन जो है वो 25 साल की उम्र में इंतकाल की है। 25 साल की उम्र में बताया जाता है कि 25 साल की उम्र ही में आपके दाढ़ी सादा हो गए, सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, यानी आपका कमर झूल गया है, यानी झुक गया है, आप पे बुढ़ापा आ गया है, आप लाठी यानी डंडा लेके चलना शुरू किए हैं, मुंह के सारे दांत झड़ गए हैं, 25 साल की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। तो लोग कहे मखदूम समनानी से हुजूर आपने कहे थे कि वो बूढ़ा होकर इंतकाल करेगा, तो आज तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते तुमने देखा नहीं मौलाना कबीरुद्दीन को, ये बूढ़ा हो ही के मरा है। अरे जो वो 90 साल, पूरे 90 साल में जो अपनी जिंदगी में देखता, सब उसे 25 साल में हर चीज उसे लज्जत मिल गया है। वही मखदूम समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज मस्जिद में
मुरीद पूरे मस्जिद में भरे हुए हैं। आप मुरीदों को तलकीन कर रहे हैं, वाजो समझा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन इब्राहिम में चिराग हिंद जैसे ही देखे हैं आपको जलाल आया है। जलाल आने के बाद गोया दुआ किए या क्या किए, जो पूरे मस्जिद में इतनी गर्मी हो गई है कि लोग उस गर्मी की ताप को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, सब लोग बाहर निकल रहे हैं। तो हजरत मखदूम में अशरफ कहते हैं ये चिराग जलाया हुआ है। सिर्फ चिराग को चंद पानी के कतरों की जरूरत है, वहीं से पानी उठाए हैं आप, अब पानी के छींटे मारे हैं, गर्मी खत्म हो गया है। और वही चिराग हिंद है, कहीं दौरा पे जा रहे थे, उसका पैर फिसला है, वो दरिया में डूब गए हैं। दरिया में जैसे ही डूबे हैं अपने सिलसिले के बुजुर्गों को आवाज दे रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दे रहे हैं। यहाँ तक के नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आवाज लगा रहे हैं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं, लाने के बाद खूब जला है, गुस्से में है, कहे चिराग हिंद, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इलाके में एक मेरा बेटा है जो तुम्हारे शहर का मेहमान भी है। तुमने मेरे बेटे का यानी मेहमान के तुमने इज्जत नहीं किया है, कदर नहीं की है, उनके शान में तुमने गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। इतने जलाल में नबी कौनैन है। तो हजरत इब्राहिम चिराग हिंद है, माफी मांगते हैं, अपने गलतियों का एहसास करते हैं। फिर उसे जब माफी मांगने के बाद जब वो दरिया से बाहर आए हैं, आप जितने भी आपके सिलसिले के बुजुर्ग हैं, आपके पास कोई नहीं है, सब मखदूम में अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास है। कह रहे हैं कि हुजूर आप उनकी खता को माफ कर दीजिए, उनकी गलती को माफ कर दीजिए। आप एक बात और सुनते चलिए, वही मखदूम समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। आप अपने मुरीदों के साथ यानी आपके भांजा हाजी अब्दुल रजाक नूर ऐन भी आपके साथ है, आपकी खिदमत में है। आप कहां पहुंचते हैं? हजरत गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के यहां पहुंचते हैं। वहां पे जब आप अपने खैमे में होते हैं तो मुरीद क्या देखते हैं, क्या आपके खैमे में इतनी गर्मी है, इतनी तपिश है, किसी की जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी की अंदर जाने की जरूरत नहीं हो रही है। लेकिन आपके भांजे अब्दुल रजाक नूरुल ऐन है, आपसे इजाजत लेकर अंदर जब दाखिल होते हैं, आपके पैशानी से क्या देखते हैं, पसीने टपक रहे हैं, आप खूब जलाल में है। पूछने वाले ने पूछा है, आपके भांजे अब्दुल रजाक नूरुल ऐन ने पूछा है, आप फरमाते हैं सुनो अभी एक गौस का इंतकाल हो गया है, एक गौस का इंतकाल हो गया है। ये मर्तबा, ये मुकाम, ये गौसियत का मुकाम, ये गौसियत का मंजिल हमें दिया गया है, हमें अता किया गया है। अगर अल्लाह ने किसी को अपना वली बनाना चाहता है या किसी को विलायत देना चाहता है तो वह गौस जिसको इजाजत दे दे, जिसके बारे में कह दे, उसे वली बना दिया जाता है। वही मखदूम समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो मुकाम पर आपको मिला है, वो मुकाम पर आप है, गौसियत के मंजिल पर आप है, आप अपने दौर के गौसियत के मरहले मंजिल पर है, आप गौसियत के मंजिल पर है। तो जितने भी इब्राहिम चिराग हिंद के सिलसिले के बुजुर्ग थे, सब कह रहे हैं कि या सैयद अशरफ, या मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, अगर आपने उसकी खता को नहीं माफ किए हैं तो रसूल कौनैन उसे माफ नहीं करेंगे, रसूल कौनैन उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने उसे माफ कर दिया। माफ करने के बाद आप चले हैं, चिरागे आप मखदूम समनानी चले, कहाँ चले हैं? आप केछोशा की तरफ रुकिए हैं। कुछ आखिरी और बात सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को खत्म करता। आप जब पहुंचे हैं अकबरपुर से, जिसे जो लोग वहां गए हैं उसे मालूम होंगे कि रास्ते में एक बसखारी मिलता है। सुनो, बसखारी का नाम बसखारी क्यों रखा गया उसे भी सुन लीजिए।
मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को पानी दिया गया, पानी पेश किए कि पानी आपने जैसे पिए तो कहा कि बस खारी, यानी पानी को कहें कि बस खारी, तभी उसका नाम पड़ गया बस खारी। फिर आप कुछ आगे बढ़ें, फिर आपको लोग पानी दिए, आपने पिए तो कहे कुछ अच्छा, कुछ अच्छा, तो आज उसका नाम केछोछा हो गया। जब मखदूम समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप केछोछा शरीफ में थे, जब बनारस के अब दौरा के लिए जब चले हैं, बनारस के लिए, बनारस के जोगी यानी बनारस के जोगी पंडित लोग ने आपका विरोध किया कि उसे आने नहीं देंगे, उसे आने नहीं देंगे। जब मखदूम समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनारस की सरजमीन पर पहुंचे हैं, बनारस पहुंचने के बाद वहाँ के जोगी लोग भूतों की पूजा कर रहे हैं, भूतों की इबादत कर रहे हैं, भूतों की पूजा कर रहे का तुम यहाँ क्यों आए? इसलिए कि तुम्हारा धर्म और है, मेरा धर्म और है, क्या चलो तुम्हारे ही धर्म को मान लिया जाए, तुम्हारी ही बात को माना जाए। बता तुम किसकी इबादत करते हो? तो दिखाया गया कि भूतों की इबादत करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। क्या तुम लोग उसकी तपस्या करते हो? कहाँ इसकी तपस्या करते हैं? अब मखदूम अशरफ से पूछा गया है, क्या हो गया है, अब जरा मुझे बताओ। आप मखदूम अशरफ गए हैं, उन्हीं बूत से कहते हैं कि बूतो अब जरा तू बताओ। तो बूत पढ़ना शुरू कर दिए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इस्लाम की हक्कानियत की गवाही दे रही है, इस्लाम की गवाही दे रही है। अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जब शुरू किए हैं तो वो 5000 जो जोगी और पंडित जो थे तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के कदमों पे गिर गए हैं, कहने के बाद कि जिसकी हम लोग तपस्या करते हैं, आज तक हम लोग एक लफ्ज भी नहीं बोलवा सके हैं, लेकिन ये फकीर है, ये दुर्वेश है, ये मखदूम अशरफ है कि एक बार इशारा किया है तो पत्थर भी बोल पड़े हैं। इसलिए कि हम लोग इसी के दीन को कबूल करते हैं, मजहब इस्लाम को हम लोग कबूल करते हैं, मजहब इस्लाम में दाखिल होते हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बेशुमार करामत है। इनकी एक करामत और है कि आप जब केछोछा शरीफ पहुंचे हैं तो वहां एक जोगी था जो बहुत सालों से वहां तपस्या करते थे। वो जोगी से कहा कि लोग कहे कि हुजूर यहाँ एक जोगी बहुत सालों से है, बहुत सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, क्या बात हुआ है? कहा कि इसलिए वो जोगी यहाँ रहते हैं। तो आपने कहा जोगी से कह दो ये इलाका मेरा है। जोगी ने मुनाजरा का चैलेंज कर दिया है, मुकाबला का चैलेंज कर दिया है। मखदूम अशरफ से मुरीदों ने कहा हुजूर वो मुनाजरे के चैलेंज किया है, मुनाजरा के लिए दावत दे रहा है, मुकाबले की दावत दे रहा है, आप क्या फरमाते हैं, आप क्या कहते हैं? सैयद अशरफ कहते नहीं, हम उसके मुनाजरा नहीं करेंगे, हम उससे मुकाबला नहीं करेंगे, हम उससे मुनाजरा नहीं करेंगे। कहा क्यों? इसलिए कि हम उससे मुनाजरा नहीं करेंगे, मेरा एक मुरीद ही उसके लिए काफी है। उस मुरीद को भेजा गया है। जब मुरीद मुकाबले के लिए गया है, अब वो जोगी है, अपने जादू के जरिए, अपने मंत्र के जरिए पूरे सारे चूंटियों की फौज भेजना शुरू किया है। वो मुरीद है, अकीदतमंद है, दिल में अपने पीर का ख्याल रखे हुए हैं, पीर का ख्याल कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ए अशरफी जमाना जमाना मदद नुमा दर्राहे बस, इतना कहना सब चूटी खत्म हो गया है। गोया ये बहुत जादुओं मंत्र का ये असर किया है, लेकिन वो मुरीद पर कोई जादू का असर नहीं हुआ है। काए फकीर बताओ तुम कौन सी तपस्या करते हो जो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और पावर है कि हम कोई तपस्या ही नहीं करते हैं, सिर्फ हम अल्लाह की इबादत और रियाजत करते हैं, हम अल्लाह की सदा लगाते हैं, हम अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं। काका चलो इसलिए कि मेरे गुरु के पास चलो। जब मखदूम समनानी के चेहरे को देखे हैं तो फौरन जोगी है मखदूम समनानी के कदमों पे गिर जाते हैं और मखदूम समनानी के कदमों पर गिर के वो इस्लाम में दाखिल होते हैं। बताया जाता है कि मखदूम समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 95,000 या 1,00,000 हिंदुओं को इस्लाम में दाखिल किए। फिर उसी केछोछा शरीफ के अंदर में
ایک طلاق کھودا گیا۔ طلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولیاء کی جماعت نے مل کے یہ طلاق کھودی تھی۔ جب یہ گیتا یا کدار چلاتے تھے تو اللہ اللہ کی صدا لگاتے تھے، اس طلاق کو مکمل تیار کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس میں آب زمزم کے پانی بھی لا کے ڈالا گیا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرا جو بھی پریشان حال اس نیل شریف کے پانی سے نہا لے، یا کوئی بھی 70,000 یا 70 بیماریوں کی اسے شفا مل جائے گا اس پانی سے، لیکن نیل شریف کی پانی بہت ہی فائدہ مند اور بہت شفا مند ہے۔ اس لیے کہ ہم بزرگوں سے محبت کریں، عقیدت کریں۔ جب ہم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پر جائیں، بڑے ادب کے ساتھ وہاں حاضری دیں۔ یقین جانیے جب آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پر حاضری دیجیے گا تو آپ کو وہاں سے ہر بلا و بیماری آپ کے اندر سے دور ہو جائے گی۔ صرف بھوت پلیت ہی وہاں سے نہیں ختم ہوتا ہے، بلکہ آپ کے اندر جہاں مرض میں آپ مبتلا ہے اس مرض سے بھی آپ کو وہاں شفا ملے گا۔ دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں مولا کریم ہم سب کو اولیاء کرام کے فیض سے فیضیاب کر، خصوصی سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے فیض سے فیضیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔